So CAT forms are out, and before you go and submit that form, please watch this video till the end to understand the common mistakes that candidates usually do every year, and you need to avoid them. You have prepared for CAT examination, you are preparing for CAT examination. The last thing you want to do is go and panic on the day of the examination because there are some mistakes in your form. या फिर अगर आप academics में या फिर work experience में, if you make certain mistakes in those areas, it is possible, even if you have got the marks, the college has the right to cancel your admission. That is why you need to be very careful about those areas, and let me tell you step by step how you can go about filling each area of the form and how to avoid some common mistakes. So आप website पे जाओगे and the first thing you have to do is a new candidate registration. Even if you have appeared for CAT 25, CAT 24, that doesn't matter. This year it's a fresh start to your application, so do a new candidate registration. If you have already registered this year, then you have to log in. So आप new candidate registration में जाओगे and then you have to fill your name, date of birth, email ID and phone number. So name, date of birth, make sure it is exactly correct. These are some details that cannot be changed later. Grievance portal and everything you have to go to, so make sure these are correct. Email and mobile number anyway will be verified by OTP, so that has to be correct. And once you register, you will get your username and password over your email that you will use for future login. And make sure over here the phone number and the email ID that you are using, you have access to it at least till next June, July of 2027. You will have access to that email. So never use your work email or anything. Use your personal email ID, because बहुत सारी इंटरव्यू के नोटिफिकेशंस आपको इस ईमेल आईडी पे आएंगे. Whenever you start a particular college, उसके जितने भी notifications हैं related to the college and everything, वो आपके इस email ID में आने वाले हैं. So unless and until you start your college next year, that is June or July of 2027 that will be, तब तक आपके पास इस email का access होना चाहिए. So never use your official work email ID over here. Always use your personal email ID. And similarly, also make sure you don't change your number in between. There will be notifications sent to your number as well. So make sure you have that with you. उसके बाद you can start your application. And once you start your application, you have to fill a lot of these tabs, and we will go to each of these tabs separately because there are certain nuances you need to know for each of them. Starting with the personal details. Personal details is pretty intuitive. Just आपको अपनी details ही भरने हैं. Make sure it is correct, nothing else. Yes, the signature and the photograph. Those are two things which are very important over here. Just make sure आपका photograph clear रहे. आपके आंखों में flash नहीं आ रहा है और recognition में problem ना हो when you are going to the center. If that particular photo is hazy and मान लो वो accept हो गया है form में, there is a possibility आप center में जाओ and आपको बोला जाए कि नहीं आपका photo तो match नहीं कर रहा है, we cannot take you in. There are centers who can do this. You don't know, you don't want to get into that. So make sure कि आप एक photo अगर नहीं आपके पास आप click कर लो, but upload it properly. एक अच्छा photo upload करो, which it does not need to be exactly a recent photo. अगर आपके पास clear photo है, it's completely fine. It should be clear. Flashes नहीं होने चाहिए, आपके आँख में hazy नहीं होना चाहिए photo, and front angle में होना चाहिए. Those are certain things you have to make sure. बस clear over image. उसके बाद signature as well. Signature भी clear होना चाहिए. It should not be very hazy. And जो signature आप usually करते हो, जो सेंटर में जाके करने वाले हो सिग्नेचर, दैट सिग्नेचर यू हैव टू डू हियर एज वेल. ठीक है, बस हेजी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्रॉपर्ली विजिबल. इसके बाद एकेडमिक्स में आ जाते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे आपका एडमिशन डिपेंड करता है. सो 10th एंड 12th के मार्क्स आपको पहले भरने हैं. मेक श्योर आप जो भी बोर्ड में थे आप उसे एक्यूरेटली फिल करो, उस पर डिपेंड करता है आपका एडमिशन. एट द सेम टाइम मार्क्स, जो एवरेज परसेंटेज मार्क्स है, दैट इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑन योर मार्कशीट, नॉट फॉर बेस्ट 4, नॉट फॉर बेस्ट 5 जैसे आप बोर्ड्स में कैलकुलेट करते थे. प्लीज डोंट फॉल इनटू दैट. आपका मार्क्स एवरेज मार्क्स होगा ऑल द सब्जेक्ट्स इन योर मार्कशीट. एक भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है. काफ़ी कैंडिडेट्स ये मिस्टेक कर जाते हैं एंड लेटर दे फेस अ प्रॉब्लम. जब वो कॉलेज का एडमिशन एंड कॉलेज का इंटरव्यू कॉल आता है, देन दे विल फेस अ प्रॉब्लम. सो मेक श्योर द एवरेज इज अबाउट ऑल द मार्क्स इन योर पर्टिकुलर मार्कशीट एंड नॉट योर बेस्ट 4, बेस्ट 5. बोर्ड जैसे भी कैलकुलेट करता था, इट इज़ कंप्लीटली फाइन. अभी के लिए यू हैव टू कैलकुलेट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स इन योर मार्कशीट. इसके बाद ग्रेजुएशन में यूजली यू आर प्रोवाइडेड अ CGPA फ्रॉम your college, but here you have to fill a percentage. तो जाके कॉलेज में पूछ लो what is that conversion factor to convert a CGPA to a percentage. किसी कॉलेज के लिए वो into 10 होता है, किसी कॉलेज के लिए into 9.5, किसी कॉलेज के लिए into 9, या फिर कोई कॉलेज डायरेक्टली परसेंटेज ही देता है. तो आपको वो परसेंटेज एक्यूरेटली फिल करना है. कॉलेज आपको बता देगा एग्जैक्टली क्या आपका कन्वर्शन फैक्टर है. अगर नहीं बता पाता है देन इट्स कंप्लीटली फाइन. into 10 हो या into 9.5 हो, एट दिस स्टेज अगर कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है कॉलेज से, तो यूजली कैंडिडेट्स डू अवे विद इट. ठीक है, हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो. बट अगर आपके कॉलेज का कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन है इस बारे में, देन प्लीज़ ask them and use the right conversion factor to convert your CGPA into percentage and fill the accurate percentage. Especially important for those people who are in their final year.
क्योंकि उनके पास वो फाइनल मार्कशीट नहीं होता है जिसमें फाइनल परसेंटेज लिखा हो, उनके पास अभी तक बस 6 सेमेस्टर्स या फिर 4 सेमेस्टर्स का मार्कशीट होता है. सो मेक श्योर आप अपने कॉलेज में जाके पूछ लो व्हाट इज योर कन्वर्जन फैक्टर एंड फिल द परसेंटेज एक्यूरेटली. इसके बाद अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्सेज, मास्टर्स कोर्सेज किए हैं, प्लीज उसे फिल करो. स्पेशली प्रोफेशनल कोर्सेज तो प्लीज फिल कर देना बिकॉज इट मैटर्स इन योर एडमिशन. आई एम बैंगलोर, आई एम अहमदाबाद, दे ट्रीट इट वेरी डिफरेंटली. सो आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज भी होते हैं. सो मेक श्योर अगर आपने प्रोफेशनल कोर्सेज किया है आप उसे फिल करो यहाँ पर. एंड इसके बाद विल गो टू द वर्क एक्सपीरियंस. बट बिफोर आई गो देयर लेट मी टेल यू अबाउट द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू अगर आप एक सीरियस कैट एस्पिरेंट हो. सो अगर आप अभी शुरू करना चाहते हो अपनी प्रेपरेशन में, बहुत जल्दी 90 डेज प्रेपरेशन प्लान भी आपके लिए रिलीज कर दूंगा. सो यू कैन बी सब्सक्राइब टू द चैनल, यू कैन वॉच दैट. एट द सेम टाइम मैंने एक कैट 2026 फोकस टॉपिक्स पे रिलीज कर दिया था वीडियो. सो अगर आप कुछ टॉपिक्स पे फोकस करना चाहते हो जो आपकी रिटर्न्स, जो आपके मार्क्स के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर दे, आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हो एट दिस स्टेज. जैसे क्वांट में अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यू हैव टू स्टडी दैट अगर आप अभी प्रेपरेशन शुरू कर रहे हो. वी हैव ऑल्सो रिलीज, लाइक आई हैव लिटरली रिलीज अ कोर्स ऑन MBA सर्कल बस अरिथमेटिक के लिए, बिकॉज काफी कैंडिडेट्स बस एक शॉर्ट मॉड्यूल पढ़ना चाहते हैं, नॉट दे डोंट वांट टू टेक द एंटायर कोचिंग एंड एवरीथिंग. सो कैट 2026 अरिथमेटिक के लिए आई हैव ऑल्सो रिलीज अ कोर्स, आप वो जाके भी देख सकते हो. सितंबर में वी विल डू सर्टेन लाइव क्लासेस एज वेल, बट उसके पहले आप उस कोर्स में लो प्राइस अफोर्डेबल कोर्स है, आप जाके वो भी देख सकते हो एंड ले सकते हो एंड कंप्लीट द थ्योरी बिफोर सितंबर इटसेल्फ. उसके बाद वी कैन डू सम लाइव प्रैक्टिस सेशंस. तो इसके बाद अगर आप और प्रिपरेशन करना चाहते हो, द बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन एट दिस स्टेज इज डूइंग द पास्ट ईयर पेपर्स. एंड पास्ट ईयर पेपर्स आपको करने कैसे हैं मैंने काफ़ी बार बताया है, अभी आप फिर से वो रिकमेंडेशन ले सकते हो. एंड दैट इज ओसवाल बुक्स का 25 ईयर्स सॉल्व पेपर है, आप बस उसे ले लो. वहाँ पर 25 ईयर्स टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है सारे क्वेश्चन. सो आप प्रेपरेशन फेज से ही इस बुक को यूज करो. सो मान लो आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ना है, आपने वो चैप्टर पढ़ा, थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद वहां से आके कैट लेवल क्वेश्चन सीधा शुरू कर दो. रिमेंबर कैट लेवल क्वेश्चंस आपको करना ही है. लेवल 1 के क्वेश्चंस आप जितने भी कर लो, इट डजंट मैटर. जब तक आप कैट लेवल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हो तब तक आपका प्रेपरेशन नहीं होता है. सो दैट्स व्हाई यू कैन गेट दिस बुक. टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है क्वेश्चंस, आप एक टॉपिक पढ़ते हो, उसके बाद उसमें जितने भी कैट लेवल क्वेश्चंस है उसे जाके सॉल्व करो. यू विल बी रियली डूइंग ग्रेट इन योर प्रेपरेशन. इसके बाद सेम बुक आप अपने प्रेपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हो. दैट इज वहाँ पर माइंड मैप्स है, रिविजन नोट्स है, स्मार्ट शॉर्टकट्स है. सो आप इन एक क्विक रिवीजन के लिए या फिर क्विक प्रेपरेशन के लिए आप सेम बुक को यूज कर सकते हो. सो वन बुक यू कैन यूज फॉर योर प्रैक्टिस एज वेल एज योर फॉर योर प्रेपरेशन. एंड तीनों सेक्शंस ये यहाँ पर वर्बल है, क्वांट है, DLR भी है. सो आप तीनों सेक्शन के लिए एक ही बुक से सब कुछ पढ़ सकते हो. एंड दैट इज व्हाई आई रिकमेंड दिस बुक कि आप कैट लेवल क्वेश्चंस आपको करने ही है. एंड द बेस्ट वे इज 25 ईयर्स के सारे कैट क्वेश्चंस जितने भी है आप उठाओ, उन्हें सॉल्व करना शुरू करो टॉपिक वाइज, एंड दैट विल रियली हेल्प इन योर प्रेपरेशन. एंड ऑब्वियसली इस बुक में सोल्यूशन एंड एवरीथिंग मेंशन रहेगा, तो आप वो जाके भी देख सकते हो. एंड लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, सो यू कैन गो एंड बाय इट. ये मार्केट प्लेसेस में अवेलेबल है, उनके खुद के वेबसाइट में भी अवेलेबल है, तो जहां भी यू आर गेटिंग इट चीपर यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर. इसके बाद आ जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस में. सो वर्क एक्सपीरियंस इज सिंपल टू फिल, बट आपको कुछ चीज़ें अगेन ध्यान रखनी है यहाँ पर. दैट इज योर स्टार्ट डेट एंड एंड डेट. सो आप कंपनी का डिटेल्स भरोगे, अपने डेजिग्नेशन भरोगे, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट शुड बी करेक्ट. अगर मान लो आप सेम कंपनी में प्रमोट हुए थे, डेजिग्नेशन हैज चेंज ड्यूरिंग योर टेन्योर, तो आप रोज मल्टीपल रोज ऐड कर सकते हो. मेक श्योर कि स्टार्ट डेट एंड एंड डेट एवरी डेजिग्नेशन का सही रहे. सो उसके बाद अगर आपने कंपनी स्विच की है तो भी आप न्यू रोज ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर अगेन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट सही रहे. इफ यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, वर्क एक्सपीरियंस टिल 31st जुलाई 2026 विल बी काउंटेड. सो वो ऑटोमेटिकली वहां पर काउंट कर लेगा. मेक श्योर फाइनली जब आप देखते हो इस पेज को, द टोटल वर्क एक्सपीरियंस दैट शुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट टिल 31st जुलाई 2026. जितना डेज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है वो एक्यूरेट रहे, बिकॉज दैट इज व्हाट मैटर्स. अगर वो गलत है तो बाद में एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकता है, बट अगर वो सही है देन इट्स कंप्लीटली फाइन फॉर यू. बट मेक श्योर कि आपका स्टार्ट डेट एंड एंड डेट फॉर ईच ऑफ दिस सही रहे. आप अपने पेपर्स निकाल के बैठो कि ऑफर लेटर का स्टार्टिंग डेट कब था, एंड डेट कब था, एंड एवरीथिंग, सो दैट इट इज प्रीटी क्लियर फॉर यू. एंड टोटल डेज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस वो तो सही होना ही चाहिए. एंड याद रखना, वर्क एक्सपीरियंस का मतलब होता है ओनली योर फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस. आप कॉलेज में थे, आपने इंटर्नशिप किया या फिर फुल टाइम वर्क भी कहीं पर किया, दैट डज नॉट मैटर. आफ्टर योर ग्रेजुएशन, जब आप कॉलेज में नहीं पढ़ रहे थे, तब जो आपने वर्क किया, अगर आपके पास वो ऑफर लेटर है देन ओनली दैट काउंट्स.
आप फैमिली बिजनेस में थे ड्यूरिंग योर कॉलेज, दैट डज नॉट मैटर, बट अगर आप फैमिली बिजनेस में थे आफ्टर योर कॉलेज, देन दैट डेफिनेटली विल बी काउंटेड, बट यू हैव टू गेट योर प्रूफ एज वेल. दैट इज ऑफर लेटर हो सकता है, सैलरी स्लिप्स एंड दोज थिंग्स हैव टू बी हैंडी. आपने कब से स्टार्ट किया उसका प्रूफ होना चाहिए, एंड अगर आप रिलीज हुए थे, दैट इज एंड डेट है कहीं पर, तो आपका रिलीज लेटर होना चाहिए. ओके, सो मेक श्योर कि आप ये चीजें हैंडी रखो नो मैटर विच जॉब यू वर इन, एंड ओनली फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस मैटर्स. फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर योर ग्रेजुएशन. कॉलेज के टाइम आपने जो भी किया था, फुल टाइम वर्क किया था, इंटर्नशिप किया था, जो भी किया था, दैट इज नॉट काउंटेड ओवर हियर. इसके बाद प्रोग्राम्स में आ जाओ. प्रोग्राम्स में काफी पीपल गेट कंफ्यूज कि मुझे क्या टिक करना चाहिए, क्या नहीं टिक करना चाहिए. एट दिस स्टेज प्लीज टिक एवरीथिंग. आप नहीं पढ़ना चाहते उस चीज में कि आपने कोई एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को टिक करना मिस कर दिया, जस्ट चेक ऑल द बॉक्सेस दैट यू हैव. पीजीपी प्रोग्राम होता है, उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम्स है, आपको नहीं जाना है उसमें, इट्स कंप्लीटली फाइन, ऐसे भी आप रिजेक्ट हो जाओगे उससे, तो प्लीज फिल दैट एटलीस्ट. आप चेक कर लो. अगर यस आपको लगता है कि नहीं आई ओनली फिल सर्टेन प्रोग्राम्स, देन आप अपनी डिसीजंस खुद ले सकते हो. एफएबीएम प्रोग्राम ये सब है, पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर. पीजीपी प्रोग्राम्स ऑब्वियसली आपको भरना ही है इफ यू आर अ रेगुलर एमबीए स्टूडेंट, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप सब कुछ भर दो. इट डज नॉट मैटर, कोई आपको क्वेश्चन बाद में नहीं करने वाला है. यू विल गेट द कॉल्स फॉर दोज प्रोग्राम्स ओनली जहां पर आप इंटरेस्टेड हो. एंड अगर आपको किसी ऐसे प्रोग्राम का कॉल आता है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप बाद में रिजेक्ट कर सकते हो, आप बाद में नहीं जा सकते हो. इट्स कंप्लीटली फाइन फॉर यू, राइट? सो इसलिए अभी के लिए आई वुड सजेस्ट यू सारे बॉक्सेस को चेक कर दो, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, एंड यू डोंट हैव टू रिसर्च ऑन ईच एंड एवरी प्रोग्राम कि या ये सही है क्या वो सही है. एंड बाद में आप डिसीजन, कैट एग्जाम के बाद आप ये डिसीजन ले सकते हो. टेस्ट सिटी, इंटरव्यू टेस्ट सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर आप एक्यूरेटली फिल करो, एंड उस सिटी को फिल करो जहां आप फरवरी, मार्च और अप्रैल के मंथ्स में रहोगे. फरवरी, मार्च यूजुअली, क्योंकि इंटरव्यूज फरवरी, मार्च में किए जाते हैं. एंड मान लो आज आप कहीं पर वर्क कर रहे हो इन अ डिफरेंट सिटी, एंड फरवरी, मार्च के टाइम आप अपने घर वापस आ जाते हो, देन यू हैव टू ट्रैवल अगेन, बिकॉज इंटरव्यू सिटी तो आपने वो चूज किया था. इन इंटरव्यू सिटी विल बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली, जो आप सिटी चूज करोगे. सो मेक श्योर आप केयरफुली ये डिसीजन लो कि आप फरवरी, मार्च में कहाँ रहने वाले हो. सो अकॉर्डिंगली यू चूज योर पर्टिकुलर इंटरव्यू सिटी. जैसे मैंने अहमदाबाद, कैलकाटा के लिए, आई एम अहमदाबाद एंड आई एम कैलकाटा के लिए मैंने कोलकाता चूज किया था, वेयर आई यूज्ड टू स्टे. एंड बाकी कॉलेजेस के लिए मैंने मुंबई, जहाँ पर एक्चुअली कोलकाता में मेरा घर है, सो आई चूज दैट. एंड बाकी कॉलेजेस के लिए मैंने मुंबई चूज किया था, जहाँ पर आई वाज स्टेइंग फॉर माई वर्क. सो मुझे पता था कि अगर जब भी अहमदाबाद, कैलकाटा का इंटरव्यू कॉल आएगा, आई डोंट नो इफ आई विल बी इन मुंबई स्टिल और आई वुड हैव रिजाइंड और क्या हुआ होगा. सो एटलीस्ट मैं कोलकाता में, अगर नहीं भी होता तो मैं कोलकाता में वापस आ सकता हूँ ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड इंटरव्यू देने के लिए इट्स बेटर इफ आई गो फ्रॉम माई होम इटसेल्फ, द सिटी इज फेमिलियर टू मी. सो इसलिए अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो व्हाट इज गुड फॉर यू, विच पर्टिकुलर कॉलेज इन विच पर्टिकुलर सिटी यू वांट टू अपीयर फॉर, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी इंटरव्यू सिटी चूज कर लो. बट मेक श्योर कि आप उस सिटी को ही चूज करो जो एक्सेसिबल हो आपके लिए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च, नॉट टुडे वेयर यू आर सिटिंग, बट इन द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च ऑफ 2027. इसके बाद टेस्ट सिटी. सो ये भी आपको काफी केयरफुली फिल करना है. टेस्ट सिटी अकॉर्डिंगली आप फिल करोगे कि इन द मंथ ऑफ नवंबर, कैट एग्जाम का डेट आ चुका है, तो आप कहाँ पर रहने वाले हो. टेस्ट सिटी 1, 2, 3, 4, 5 सारे ही प्रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट है. अगर आपको सिटी 1 नहीं मिलता है, इट इज पॉसिबल कि आपको सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस भी मिले. सो फिल योर सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंस एज वेल वेरी वेरी केयरफुली. याद रखना ये चीज़ें इतनी मैटर, ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल ही जाएगा, एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा. सो मेक श्योर आपका जो भी ऑर्डर है वो सही रहे. काफ़ी लोग क्या करते हैं, सेकंड थर्ड प्रेफरेंस कुछ भी भर देते हैं, थिंकिंग कि उन्हें उनका फर्स्ट प्रेफरेंस तो मिल ही जाएगा. एंड इफ इट हैपेंस टू बी सेकंड थर्ड, देन दे रियलाइज कि उन्हें तो इस ऐसी जगह जाना है जहाँ पर जो एक्सेसिबल ही नहीं हो. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो देयर, काफ़ी उनका पैसा भी खर्च हो जाएगा वहाँ जाने में. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू मेक श्योर कि आपका एटलीस्ट 1, 2, 3 ऑप्शन तो बहुत अच्छा रहे. 4, 5 एज वेल, ब्रिंग इट वेरी केयरफुली. जहाँ पर भी एक्सेसिबल हो, जहाँ पर फ्लाइट्स ईजिली एक्सेसिबल एंड एवरीथिंग, आप वो ऑप्शन ले सकते हो, या फिर ट्रेन से आप जा सकते हो. वो सब ऑप्शन आप केयरफुली कंसिडर कर सकते हो. बट मेक श्योर कि 1, 2, 3 ऑप्शंस आर द मोस्ट एक्सेसिबल वंस फॉर यू, जहाँ पर मिनिमम कॉस्ट में आप वहाँ पर पहुँच पाओ. मैं अगेन पुणे में रहता था, पुणे मुंबई में रहता था उस टाइम, बट स्टिल आई चोज कोलकाता एज द ऑप्शन, द फर्स्ट प्रेफरेंस, बिकॉज आई वॉन्टेड टू कम बैक होम. अगेन द सिटी इज फेमिलियर टू मी, एंड आई न्यू कि मुझे उस दिन का टेंशन नहीं लेना है कि यूजली टेस्ट जो सेंटर्स होते हैं वो बहुत दूर दूर हो सकते हैं. सो पुणे मुंबई में अगर वो ऑप्शन दिया जाता है, देन आई हैव टू बुक अ कैब. आई डोंट नो द रोड एज वेल, सो आई हैव टू लीव प्रिटी अर्ली. एंड
एंड कोलकाता में इट इज़ वेरी फेमिलियर, आई नो वेयर द कैट एग्जाम हैपेंस एंड एवरीथिंग. तो अगर वो वहाँ पर होता है, आई नो इट विल बी वेरी इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम माई होम. सो दैट्स वाई आई चोज माई पर्टिकुलर कन्वीनियंट सिटी इवन इफ आई हैव टू फ्लाई बैक. सो अकॉर्डिंगली प्लीज सिलेक्ट योर सिटी वेरी केयरफुली, जहाँ पर यू थिंक यू विल बी एट योर मैक्सिमम पोटेंशियल, उस दिन आपको टेंशन ना हो. अकॉर्डिंगली आप प्लीज ये पर्टिकुलर सिटी फिल करो. एंड इसके बाद फाइनली आपको डिक्लेरेशन करना है एंड द एप्लीकेशन फॉर्म इज ओवर. इसके बाद भी कुछ ऐसे फॉर्म्स है जो आप रेडी रख सकते हो अपने साथ. वन इज द, कुछ ऐसे फॉर्म्स देख लेते हैं. यू हैव टू कम आउटसाइड एंड देन सी, ये कैट के वेबसाइट पे डायरेक्टली अवेलेबल होता है. ऑथराइजेशन फॉर्म होता है. फर्स्ट ऑथराइजेशन फॉर्म क्या है? दैट इज बेसिकली अगर आपको कैट एग्जाम में कोई डिवाइस या इक्विपमेंट ले जाना है, फॉर एग्जाम्पल किसी को हियरिंग एड चाहिए होता है एंड एवरीथिंग, सो उसके लिए यू हैव टू गेट ऑथराइज. तो ये ऑथराइजेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, यू हैव टू गेट इट फिल्ड. ठीक है, तो ये ऑथराइजेशन फॉर्म है. उसके बाद स्क्राइब एफिडेविट होता है. स्क्राइब बेसिकली अगर आपको स्क्राइब कैरी करना है एग्जाम में, किसी को ले जाना है अपने बिहाफ पे, तो अगेन यू हैव टू फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म एज वेल एंड कीप इट रेडी. एंड इसके बाद है आपका आइडेंटिफिकेशन एफिडेविट. सो आप जहाँ के भी डोमिसाइल हो, यू शुड हैव द प्रूफ. अगर आपके पास परफेक्ट प्रूफ नहीं है तो आप ऐसे फॉर्म भर के कहीं से एफिडेविट करवा सकते हो, अटेस्ट करवा सकते हो किसी एक रिकॉग्नाइज्ड नोटरी पब्लिक से. इट कैन बी अ पुलिस ऑफिसर और समवन एज वेल, जिनके पास ये पावर हो टू कीप द स्टैम्प एंड एवरीथिंग, दैट विल अप्रूव दैट यू आर अ रेसिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकेशन. तो आप ये चीज़ जाके करवा लो. अगर आपके पास वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं है, वैलिड डोमिसाइल प्रूफ आपके पास नहीं है, तो ये जाके आप किसी से स्टैम्प करवा सकते हो. बट अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग है, पासपोर्ट है बहुत सालों से, एंड जहाँ पर प्रॉपर एड्रेस एंड एवरीथिंग मेंशन्ड है, देन इट्स कंप्लीटली फाइन. वो इतना मैटर नहीं करता है. इसके बाद फाइनल ईयर सर्टिफिकेट, दैट इज फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स. अगर आप फाइनल ईयर में हो, देन यू हैव टू गेट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कॉलेज, फ्रॉम योर dean or whatever the authority, whoever the authority is, कि आप फाइनल ईयर में हो एंड नेक्स्ट, यानी यू हैव क्लियर्ड ऑल द रिक्वायरमेंट्स सो फार एंड आप नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट होने वाले हो. एंड दिस फॉर्म यूजली कैट एग्जाम के बाद रिक्वायर्ड होता है, बट आई वुड सजेस्ट यू, आपके पास अभी टाइम है, यू डोंट वांट टू टेक द हेडेक लेटर, आप अभी करवा के ले आओ. काफ़ी कॉलेजेस में काफ़ी डिले कर लेते हैं वो प्रोसेसेस इन चीज़ों में, तो इसलिए आप अपने डीन से ये एफिडेविट ले लो कि यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एट दिस कॉलेज एंड नेक्स्ट ईयर यू विल बी ग्रेजुएटिंग. जो भी फॉर्म में मेंशन्ड है, इट्स अ फॉर्म यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द कैट वेबसाइट, एंड वो जाके आप अपने डीन से या फिर HOD से और हुएवर इज द एडमिनिस्ट्रेशन, प्लीज़ उनसे जाके ये साइन करवा लो. एंड दिस इज ओनली फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो 2027 में ग्रेजुएट होने वाले हैं. सो 2027 बेसिकली अप्रैल मई में आप ग्रेजुएट होने वाले हो. अभी तक आप कॉलेज के पार्ट हो, सो यू हैव नॉट क्लियर्ड योर फाइनल सेमेस्टर. आपके पास फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं है, तो दैट्स वाई दिस फॉर्म विल बी वेरी यूजफुल व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यूज. अगर आपके पास फाइनल ईयर का मार्कशीट तब तक नहीं आता है, देन दिस फॉर्म विल बी वेरी हैंडी टू शो कि आपके पास ये एफिडेविट है, फाइनल ईयर सर्टिफिकेट है आपके पास, एंड यू विल बी ग्रेजुएटिंग इन 2027 इटसेल्फ. सो बिफोर द कॉलेज स्टार्ट्स यू विल बी ग्रेजुएटिंग. वो बेसिकली आपके पास प्रूफ आ जाएगा थ्रू दिस सर्टिफिकेट. इसके बाद जो भी अगर आपके पास कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन है, तो वो फॉर्म्स, या फिर हो सकता है आपके पास EWS का कोई सर्टिफिकेट है तो उसके फॉर्म्स, डिसेबिलिटी है तो PWD उनके लिए सर्टिफिकेट फॉर्म्स. तो दीज थिंग्स ऑल्सो यू हैव टू कीप रेडी एंड दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल. आपके पास अगर कोई कैटेगरी या PWD या EWS जो भी अगर कोई रिजर्वेशन है, तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए फुलफिल्ड. ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म्स होते हैं आउटसाइड द एप्लीकेशन फॉर्म, दैट ऑल्सो यू कैन कीप रेडी फॉर योर सेल्फ. I hope that makes it very clear for you each and every step आपको क्या करना है. If you still have any doubt, please comment down below. I'll be happy to address that in the comment section. But make sure आप इस वीडियो को देख के properly अपना टाइम लेके fill करते हो कैट फॉर्म को. You don't want to take that extra tension ahead. And having said that, all the best to all the CAT aspirants. May you get your dream B schools this particular year. अगर ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड बाय, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं कैट एग्जाम के पहले. GDPI के लिए भी काफ़ी सारे फ्री सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, फ्री वीडियोस भी आने वाले हैं. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. अगर आप अरिथमेटिक कोर्स में एनरोल्ड हो, देन एनीवे वी विल बी मीटिंग इन द मंथ ऑफ September ऑन लाइव सेशंस. But yes, all the best to everyone. Do prepare really, really well. Last 3 months can really change your life, can really change your career trajectory. So put all your focus on your preparation. That's it for this particular video. See you in the next one.